اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میرے اور شگفتہ کے گھر کے درمیان ایک گھر تھا۔ گھر کی چھت ہم دونوں کے گھروں کی چھتوں سے کچھ ایسے ملی ہوئی تھی کہ بآسانی ایک دوسرے کی چھت تک کا سفر طے کیا جا سکتا تھا۔ یہ تھوڑا نچلے درجے کا محلہ تھا۔ گھروں کے حالات ان کے ملتے جلتے نقشوں جیسے ہی تھے۔ بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے لڑکپن کی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے گزرا تھا۔ انہی بچپن سے لڑکپن کی طرف سفر کرتے دنوں میں شگفتہ کے گھر والے اپنا گھر کرائے پر دے کر کسی بہتر علاقے اور قدرے بڑے گھر کرائے پر چلے گئے۔ شگفتہ کے ابا کا اچانک ہی ملک سے باہر جانے کا چانس بن گیا اور ان کے دن پھر گئے۔ بعد میں انہوں نے وہ گھر بھی خرید لیا۔ اب قریباً 2 سال پہلے وہ لوگ پرانے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ اس کے ابا واپس پاکستان آ گئے تھے۔ اب ان کی مستقل کمائی کا ذریعہ وہی گھر اور ایک آدھ دکان تھی جو انہوں نے باہر رہ کر بنا لی تھی۔ شگفتہ اور اس کی بڑی بہن بس 2 ہی بچے تھے ان کے۔ بڑی بہن کی شادی کراچی سے باہر کہیں ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ دوبارہ ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے تو گو کہ پہلے والا ملنا ملانا نہیں تھا، مگر چونکہ وہ لوگ خود یہاں آ کر بہت خوش تھے اس لیے ماضی میں تقریباً وہ سارے گھر جن سے ان کے تعلقات تھے ان سے ملنے ملانے گئے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر ہمارا بھی تھا۔ جس دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف فرما تھی۔ میں صحیح معنوں میں اس کے انداز اور گوری رنگت پر سے نظر ہٹانا بھول گیا۔ اس نے ایسا رنگ روپ نکالا تھا اور ایسی اٹھان پائی تھی کہ اچھے اچھوں کی توبہ میں شکنے پڑ جاتی۔ میں نے پہلی نگاہ اس پر ڈالتے ہی اپنا دل تو ہارا مگر اس کا دل بھی جیت لیا اور ہماری لو سٹوری چل پڑی۔ مگر اس کامیابی میں سب سے پہلا ولن وہی درمیان والا گھر بنا جو بدقسمتی سے امجد کا تھا۔ امجد کے ابا ٹریول ایجنٹ کا کام کرتے تھے اور وہ یہی کام یہاں کراچی میں کرتا تھا۔ لاہور میں اس کا گھرانہ کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ کراچی میں ہمارے پڑوس والا گھر بھی اس کا اپنا تھا۔ اسی لیے جون کی ایک بے حد تپتی ہوئی دوپہر میں جب پورا محلہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں پنکھوں کے نیچے پڑا اونگ رہا تھا اس کمبخت نے ہمیں اپنی ہی چھت کے ٹین والے چھجے تلے بچھے پلنگ پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا اس نے تو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ شگفتہ کا تو پتہ نہیں مگر میں اس صورتحال سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ اللہ جانے شگفتہ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر مجھ سے شکایت تو نہ کی تھی مگر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ مجھ سے بٹورتا ہی رہتا تھا اور یہ کھیل اس وقت تک چل رہا تھا جب تک ہماری پریم کہانی کو کوئی خوبصورت انجام کسی علانیہ ہاتھ پہ رشتے کی صورت نہ مل جاتا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ بجائے بہتری آنے کے صورتحال اور گمبھیر اور کشیدہ ہوتی چلی گئی۔ ہماری سیدھی سادی محبت میں یکایک ہی 3 ولن ابھر آئے۔ ایک تو امجد تھا جو ہر وقت ہماری ملن کی گھڑیوں کی تاک میں رہتا اور عین وقت پر انٹری دے کر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیتا۔ دوسرے نکلے شگفتہ کے ابا جنہوں نے اچانک ہی شگفتہ کی جلد از جلد شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ سیدھا رات کو سویا تیرا ابا صبح اٹھ کر تیری شادی کی فکر طاری ہو گئی۔ میں نے سنتے ہی شگفتہ سے کہا ابا نے کہا ہے کہ وہ ایسے لڑکے سے میری شادی کریں گے جو یا تو ملک سے باہر ہو یا سرکاری نوکری کرتا ہو پکی والی۔ میرے پاس تو دونوں ہی سہولیات کا فقدان تھا۔ تیسری اور سب سے خطرناک ولن کے روپ میں سامنے آئی میری ماں۔ کیا وہ اصغر کی لڑکی؟ جی اماں آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یقین تو آ رہا ہے پر تیری بات پر نہیں۔ تو پھر؟ میں نے ہونکوں کی طرح ان کی شکل دیکھی۔ تیرا دماغ چلنے پر میں تپ گیا۔ ایک بات تو بتا، پورے محلے اور خاندان بھر کی ساری لڑکیاں چھوڑ کر تجھے شگفتہ ہی ملی تھی؟ تو بہت بھولا ہے میرے بچے۔ اماں کے دل میں جانے کیا خیال آیا، ہاتھ میں پڑا سروتا اور چھالیاں اپنے قدیم جاپانی پاندان میں ڈال کر کھٹاک سے اس کا بھاری ڈھکن گرایا، پھر اسے ایک طرف کر کے میری طرف جھک کر پیار سے کہا اچھا تو مجھے چالاک بننے کا ہی کوئی طریقہ بتا دے۔ میں تپ کر بولا ذرا سن تو۔ اماں نے میری بات کو مذاق سمجھ کر کچھ دیر اپنے پوپلے منہ سے ہنسی اڑائی۔ یہ جو اپنی شگفتہ ہے نا، 1 نمبر کی چلتی پرزا ہے۔ اپنی ہونے والی بہو کے بارے میں اماں کے خیالات مجھے ذرا نہ بھائے۔ آپ کو کیسے پتا اماں؟ کسی کی بیٹی کے بارے میں میری بات ادھوری رہ گئی۔ آئے ہٹ یہاں سے، کچھ پتا بھی ہے تجھے؟ یہ اپنے پڑوس والے امجد سے چکر چل رہا ہے اس کا۔ کیا؟ میں ہکا بکا ہو گیا۔ اور نہیں تو کیا، وہ سلمہ بتا رہی تھی، بھری دوپہر میں اکیلے اس چھڑے چھانٹ کی چھت پر کودتے دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے۔ ہائے میرے اللہ، توبہ۔ اماں توبہ کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سلمہ کی گردن مروڑوں یا پھر شگفتہ کو ہی جا کر 2 تھپڑ لگا آؤں۔ اف میرا بس نہ چلا تو اپنے ہی بال نوچ ڈالے۔
बेजरर सी 2-4 मुलाकातें क्या रंग दिखा रही थी। जब भी मैं शगुफ्ता से मिलने छत पर जाता, अमजद खबीस किसी बोतल के जिन की तरह आ धमकता और फिर इन जिद्दी और हट धर्म बच्चों की तरह जिनकी जितनी भी तरबियत की जाए उन्हें हमेशा बड़ों के दरमियान बैठकर ही खेलना होता है। मेरे और शगुफ्ता के आस पास ही टहलता रहता। इस बेशरम को देखो, कबाब में हड्डी बना घूम रहा है और जरा तमीज नहीं। कभी कभी बेहद चिढ़कर मैं कहने पर मजबूर हो जाता, छोड़ो ना, हमारा क्या लेता है, तुम अपनी सुनाओ। मैंने बताया था कि अनारकली में सेल लगी है। यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो लंच टाइम में बामुश्किल भागम भाग तुमसे मिलने घर आता हूँ। तो फिर शगुफ्ता का चेहरा उतर जाता। तुम ऐसा करो, ये रख लो, तुम खुद जाकर अपनी पसंद से। मैंने हमेशा उसके साथ बाहर घूमने फिरने से एहतियात बरती कि कोई हमें बाहर एक साथ ना देख ले। हमेशा की तरह मुझे वॉलेट निकालता देखकर शगुफ्ता का मुंह उतर गया और अमजद का मुंह खिल उठा। वो फौरन नजदीक आया, जबकि शगुफ्ता कह रही थी, ये पैसे क्यों देते रहते हो हर वक्त, ये कोई तुम्हारा नेमुल बदल तो नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मेरे साथ वक्त बिताने की कीमत चुकाते हो शगुफ्ता। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया। आइंदा ये बात मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी समझकर रख लिया करो। मैं अक्सर ही उसकी मुट्ठी में कभी लाल, कभी हरे और कभी एक आध नीला नोट दबा ही देता। मोहब्बत के इजहार का कोई अनोखा और अछूता तरीका ना मुझे आता था, ना मेरे पास वक्त होता था। क्या बात है सोनियो, कभी हमारे भी मुट्ठी गर्म कर दिया करो, हम भी तुम्हारे सजन ही हैं, दुश्मन तो नहीं। उसका तपाने वाला मखसूस अंदाज था जो मुझे एक आंख ना भाता था। शगुफ्ता इसको जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगी। तू मेरा चाचा लगता है। ओ यार, मैं तो रखवाली करने आ जाता हूँ, कोई इधर उधर से तुम्हें तार तो नहीं रहा। मैं तब कर उसके हाथ पर कुछ न कुछ रख ही देता। अल्लाह के फजल से मैं मोहल्ले का सबसे खूबरू और पढ़ा लिखा जवान था और कुछ टूर बनाने का शौक भी, मगर इस सब के बावजूद मैं नहीं चाहता था कि शगुफ्ता के ऊपर मेरे हवाले से कभी उंगलियां उठे। जब भी मैं उसे अमजद की छत तक आने से मना ही करता था। और एक दिन वक्त ने साबित किया कि उसकी तरफ से बरती जाने वाली ये एहतियात भी फायदा मंद रही। एक दिन मुंडेर से लटका अमजद चौंक कर पीछे हुआ और शगुफ्ता से बोला, ए शगुफ्ता, तेरा अब्बा घर पर नहीं था क्या? शगुफ्ता उसकी बात समझ ना सकी। मैंने अभी भी उसे बाहर से घर में घुसते देखा है। हाय, मैं मर गई। वो बुरी तरह घबरा गई। अब क्या करूँ? हाय अल्लाह जफर, वो तो पूरे घर में मुझे ढूंढ ढांड कर छत पर आते ही होंगे। चल तू ऐसा कर, मेरे घर से निकल, कह देना कि किसी सहेली के घर से आई हूँ। उसने फटाफट हल पेश किया। मैं पागलों की तरह उन्हें देखता ही रह गया। अब तू भी निकल शहजादे, सड़ी धूप में क्या हुस्न बर्बाद करना है अपना। मैं सख्त बदमजा होकर उठा और शुक्र कर तेरे यार ने पहरा देने की ड्यूटी संभाली हुई है, वरना आज तू इधर ही धर लेता उसका अब्बा तुझे। चल अब निकल जल्दी। उसने मुझे मंडेर की तरफ धकेला। शगुफ्ता पहले ही नीचे जा चुकी थी। इतवार का दिन था। अम्मा सोबिया के लिए बनवाए गए लिहाफ, गद्दे और रजाइयों को धूप लगवा रही थी। अम्मा ने थोड़ा थोड़ा करके इतना जमा कर लिया था कि ना सिर्फ सोबी के जहेज बल्कि शादी में कयाम के इरादे से आने वाले मेहमानों के लिए भी अच्छा इंतजाम हो गया था। करीबी तख्त पर अम्मा अपने पानदान में से एक मखमली पोटली निकाल कर जाने क्या देख रही थी। मैं माँ के पास ही लेटा सुस्ती से सोच रहा था कि शगुफ्ता से मिले कितने दिन हो गए थे। मेरी हर सोच शगुफ्ता से शुरू होकर शगुफ्ता पर ही खत्म होती थी। उसी वक्त अम्मा ने मेरा कंधा हिलाकर एक खूबसूरत सा कंगन मेरी तरफ बढ़ाया। देख तो जरा कैसा है। बहुत खूबसूरत है अम्मा। उसकी चमक और डिजाइन ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं अपनी सोचों से निकलकर उसे सराहने और बगौर देखने पर मजबूर हो गया। कैसा है? तेरी होने वाली दुल्हन के लिए लिया है। मैंने तसव्वुर में शगुफ्ता को कलाई में कंगन डालते देखा। उसकी चिट्टी कलाई में लगेगा भी बहुत प्यारा। मैं बेध्यानी में बोला, फिर चौंका। किसकी कलाई में? तेरी दुल्हन की। और किसकी? आप तो यूँ कह रही हैं जैसे मेरी दुल्हन पसंद कर ली हो। मैं हंसा। मैंने तो सरासर बात टाली थी, मगर अम्मा ने जवाब में ही बम दे मारा। हाँ, पसंद तो कर ली है, बल्कि पसंद क्या, मैं तो इशारतन कह भी आई हूँ। उन्होंने जितने इत्मीनान से कहा था, मैं इतने ही जोर से झटका खाकर उछला और कंगन मेरे हाथ से निकलकर पानदान के ऊपर जा गिरा। अम्मा क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे। अम्मा ने मोहब्बत लुटाती निगाहों से पहले मुझे और फिर कंगन को देखा। ऐसी हूर परी पसंद की है तेरे लिए, लेकिन मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर कम से कम पूछ तो लेती। अरे तो अब बता दे, तुझे क्या एतराज है? और अगर कोई एतराज है भी तो बेला को देखकर सारे एतराज हवाओं में उड़ जाएंगे फिर से। मेरे हाथों के तोते उड़ाकर उन्हें खूब सूझी थी। उनका इत्मीनान काबिले दीद था। कंगन पर जमी उनकी नजरों में साफ लिखा था कि वो ना सिर्फ फैसला कर चुकी हैं, बल्कि किसी हद तक अमल दरामद भी।
अम्मा मुझे नहीं करनी किसी बेला मोतिया से शादी, तो फिर किससे करनी है? मैं जितना तनक कर बोला था अम्मा ने भी उतना ही चमक कर पूछा और मेरे लब खुलने से पहले बोल पड़े, उस मनहूस मारी शगुफ्ता का नाम मत लेना मेरे आगे, बता रही हूँ जुबान खींच लूंगी तेरी। तो वाह ऐसी दीदा हवाई लड़की तो देखी ना सही। मैंने उसे अपनी गुनाहगार आंखों से इस निगोड़े अमजद के साथ बाजार में फिरते देखा था और खुदा झूठ ना बुलवाए दोनों ही जमाने भर के आवारा हैं। अल्लाह मिलाई जोड़ी है दोनों की, जैसे को तैसा मिलेगा, खुश रहेंगे दोनों बहुत। और तू? अम्मा ने रुक कर मुझे घूरा। मेरी लाश पर से गुजर कर ला सकता है तो ले आ। अम्मा की ट्रेन जो चलना शुरू हुई तो मुझे पटरी पे आना ही पड़ा, मगर बात इतनी आसानी से हजम होने वाली ना थी। मैंने हमेशा शगुफ्ता को ही बीवी के रूप में देखा था। मैंने सोच लिया था इतनी आसानी से तो मैं भी हथियार नहीं डालूंगा। शाम का वक्त था, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था। जाने क्यों जब से अम्मा ने रिश्ते वाली बात की थी तबीयत पर अजीब सी उदासी तारी थी। ना कुछ करने का दिल चाहता था ना किसी से मिलने का। सोबिया मेरे लिए चाय रख कर गई तो अपना सेल फोन वहीं छोड़ गई। मेरे जहन में जाने क्या आया कि मैंने उसका सेल उठाया और फोन बुक खोल ली और मतलूबा नंबर तलाश करने लगा। मैं मुसलसल किचन पर भी नजर रखे हुए था। सोबिया किसी भी वक्त आ सकती थी। जरा सी कोशिश के बाद नंबर मिल गया। मैंने जल्दी से उसे अपने पास महफूज किया और सोबिया का मोबाइल वापस रख दिया। सोबिया की शादी की तारीख क्या तय हुई? दिन यूं भागे गोया बारात वाले दिन ही रुककर सांस लेंगे। अम्मा ने सालों से जमा किया जेवर, कपड़ा लत्ता, बर्तन, मशीनरी निकलवाना शुरू की। सारा सामान मिलाकर भी शादी के लिए तो कम ही था। मैंने ऑफिस से लोन लिया, ओवर टाइम भी लगाना शुरू कर दिया। वो रात 12 बजे घर पहुंचता और दूसरे दिन सुबह सुबह फिर निकल जाता। ऐसी मसरूफियत में शगुफ्ता से मुलाकात एक ख्वाब ही बनकर रह गई। बस अमजद ही था जो कभी कभी उसका कोई पैगाम लेकर आ जाता। बारबेक्यू जा रही हूँ, मिलना हो तो 8 बजे आ जाना, सेल लगी है, नई वैरायटी लॉन के सूट। मेरा जवाब हर दफा इनकार में होता। आजकल हाथ इतना तंग हो चुका था कि मैं उन पैगामात का पस पर्दा मोहरिक जानने के बावजूद खामोशी से सुनकर उठ जाता। जब भी एक दिन मामू के ढाबे पर अमजद ने एक रुका ला थमाया, जफर मेरी जान, अंदाज मुखातिब इतना बेबाक था कि मर्द होने के बावजूद मेरा हाथ लर्ज गया। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? अब तो वो दिन वो पल ख्वाब से लगते हैं जब हम कितनी देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और प्यार मोहब्बत की बातें किया करते थे। दोपहर में छत पर जरूर आना, एक जरूरी काम है तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शगुफ्ता उर्फ शेकी। मैं खसियानेपन से सर पर हाथ फेर कर रह गया। कान में बाइक की चाबी घुमाता अमजद मायने खेजी से हंस रहा था। ये क्या कह रही हो शगुफ्ता? उसने क्या बात करने के लिए बुलाया था? मुझे अंदाजा नहीं था। शगुफ्ता ज़ारों की तार रो रही थी। मैंने तो मर कर भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। मैंने तो वो अब हिचकियाँ ले रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहती थी। हमेशा तुम ही मुझे कुछ न कुछ देते हो। इस बार मैंने सोचा था, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर फिर रोने लगी। मैं गहरी सांस भर कर रह गया। बात पचीदा थी मगर अजीब और मुश्किल जरूर थी। शगुफ्ता ने अपनी खानदानी अंगूठी बहुत इसरार और मिन्नत करके उसका भद्दा डिजाइन बदलवाने के लिए ली थी और सोचा कि खानदानी अंगूठी तो काफी भारी थी, उसे देकर बदले में कोई हल्की सी अंगूठी ले लेगी और थोड़े पैसे बचाकर मेरे लिए शॉपिंग कर लेगी तोहफा देने के लिए। उसे मेरे लिए कुछ कपड़े घड़ी वगैरह खरीदने थे, मगर मुसीबत ये आ पड़ी कि वो नामुराद अंगूठी उस अरमानों भरी गफलत की मारी महबूबा से जाने कहाँ खो गई। अम्मा मुझे जान से मार डालेंगी। जफर मेरी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर सर उठाया। तुम रो मत शगुफ्ता प्लीज। मेरी आवाज कमजोर सी थी। मुझसे उसका सुर्ख चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं कुछ कर लूंगा, बस कुछ दिन इसी तरह अपनी अम्मा को बहला लो। दूर बैठे अमजद के कानों में यकीनन मेरी आवाज चली गई थी। वो सर उठाकर मुझे देखने लगा। नहीं जफर, खुदा के लिए तुम अब मजीद मेरे लिए कुछ मत करना। मैं पहले ही तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबकर रह गई हूँ, और वैसे भी सोने का तो मामूली सा जेवर भी बहुत महंगा आता है। तुम कहाँ से? वो एक बार फिर सिसकने लगी। अरे यार चुप करो, बंद करो ये रोना धोना। कह जो दिया बस कर दूंगा कहीं से भी। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारा मसला अगर मैं ही हल ना कर सका तो लानत है इस रिश्ते और मोहब्बत पर। मैंने जज्बाती होकर उसके आंसू पोंछ डाले। अमजद ये देखकर उठा और चुपचाप नीचे चला गया। मैंने उसे जाता देखकर सुकून का सांस लिया। अल्लाह अगर कोई मसला पैदा करे तो उसके असबाब भी खुद ही करता है। ये मेरा ईमान था और कुछ ऐसा गलत भी नहीं था।
महीने की आखिरी तारीखें थी और अगले महीने की पहली को मेरी तनख्वाह और मेरी वो कमेटी एक साथ मिलने वाली थी जो मैंने अपनी बहन की शादी के लिए डाल रखी थी। अगर मैं इस कमेटी में से चंद हजार निकाल कर शगुफ्ता का मसला हल कर देता तो क्या बुरा था। उसकी अम्मा की अंगूठी तो खानदानी थी, जाने कितनी भारी थी, मैंने तो देखी तक ना थी। मैं तो उसे एक मामूली बारीक सी अंगूठी दिला सकता था और कमेटी भी सिर्फ 50,000 की थी, कोई लाख 2 लाख की तो थी नहीं। मैंने सोच समझकर चंद हजार रुपए अलग किए और अमजद के घर चला आया। मगरिब की अजानें हो रही थी, कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ मेरे दिल में भी। मैंने जो ऑफिस की शर्ट उतार कर खोंटी पर डाली थी उसकी जेब में हजार के 20 नोट मौजूद थे। अम्मा को मालूम था मेरी कमेटी इसी महीने निकलेगी, वो यकीनन इस बारे में पूछने के लिए आने ही वाली थी, मगर उनके आने से पहले सोबिया चली आई। भाई आपसे एक बात करनी है। मैंने जलती हुई आंखें खोलकर उसे देखा। क्या बात है, बोलो। आपने बेला को फोन किया था? मेरी सारी सुस्ती हवा हो गई। लो, उसने सोबिया को बता दिया, लेकिन क्यों? और वो ऐसा भला कैसे कर सकती है, जबकि मेरी तो उसने कॉल अटेंड तक नहीं की। ऐसा तो मैंने सोचा ही ना था। हाँ किया तो था, मगर उसने रिसीव ही कब किया पता है क्यों? क्योंकि वो अजनबियों से फोन पर बात नहीं करती। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा। मैं नजर झुकाकर धीरे से बोला, अच्छा करती है। अगर आपको इससे कोई बात करनी भी है तो मंगनी के बाद कर लीजिएगा। मंगनी के बाद? मैंने उठकर शर्ट की जेब खंगाली। शादी के बाद? वाकई मैं अम्मा को बता दूं कि आप राजी हैं? सोबिया एकदम खुश और हैरान रह गई। हाँ, मैं फीकी सी हंसी हंस दिया। और ये लोग कमेटी निकल गई है, पूरे 50 हैं। ध्यान से अम्मा को देना। आप लोग हैरान है ना? कहाँ तू शगुफ्ता के लिए मरा जा रहा था और कहाँ एक बार बहुत दिन गुजरे मेरे पास एक मैसेज आया था। बहुत दुख देती है ये बात कि आप किसी पर अंधों की तरह एतबार करें और वो साबित कर दे कि आप सचमुच अंधे हैं। मैंने भी एतबार किया था शगुफ्ता पर अंधों की तरह और उसने भी साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधा हूँ, अकल का अंधा। और मैं इसी अंधेपन में मुब्तला रहता अगर अमजद मेरी आंखें ना खोल देता। जी हाँ, अमजद, जिसे मैं कबाब में हड्डी, चोर, झूठा, खबीस और जाने क्या क्या कहता था। वही अमजद मेरे हाथ में दबे 20,000 रुपए देखकर हैरान रह गया। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मुझसे ऐसे बास पर्स कर रहा था जैसे किसी नादान बच्चे ने पैसे चोरी किए हों। मैं बताना तो नहीं चाहता था मगर मजबूर हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैंने नहीं बताया तो वो शगुफ्ता को ये पैसे देगा ही नहीं। सुन जफर, वो तफसील सुनकर संजीदा हो गया। ये तेरे हक हलाल की कमाई है, इन पर तेरी माँ और बहन के सिवा किसी का हक नहीं, इसलिए ये पैसे वापस ले जा। यार तू मेरे और शगुफ्ता के मामले में ना बोल, बस ये दे जाकर उसे। जवाब में कुछ कहने की बजाय अमजद ने गहरी सांस भरी। एक बात बोलूं जफर, तू ये ठीक नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ, पर मैं शगुफ्ता की परेशानी और भाड़ में गई उसकी परेशानी। तेरी बहन की शादी सर पर खड़ी है और तू बारात के खाने का इंतजाम करने की बजाय पैसे लेकर आ गया उस फितनी पर निसार करने के लिए। अमजद, मैं भौंचा रह गया। ठीक कह रहा हूँ मैं, फितनी है वो, खूबसूरत फितनी। झूठ बोलती है, उसे कोई गम कोई परेशानी नहीं। और ये पैसे पता भी है क्यों मांगे हैं उसने होंठ भींच कर कोई बात लबों से निकलने से रोकी। मेरा मुंह न खुलवा, बस ये रख और अपनी शक्ल गुम कर। उसने रुख फेर लिया। तू मुझे उसे बदजन करने की नाकाम कोशिश कर रहा है अमजद। मुझे हंसी आ रही है तुझ पर, वो सिर्फ मेरी है। तू और तू जैसे तो उसे पाने के सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। पागल है तू। मैं बात को इतना ही समझ सकता था। और पागल मैं नहीं, तू है। उसने मुझे गाली दी। यकीन नहीं आता तो खुद फोन करके पूछ उससे। उसने मेज पर पड़ा फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं यूं ही बैठा रहा। मुझे उसकी बात पर 1% भी यकीन नहीं था। क्यों हो गई बोलती बंद? उसका फोन खराब है, यही कहा था ना उसने तुझसे झूठ बोला था। मैं बताता हूँ तुझे उसका नंबर, ये ले, तुझे पता भी नहीं। और उसने नई सिम ले ली और वो नंबर मुझे जुबानी याद है। उसने नंबर मिलाकर मुझे दिया। मेरे हाथ सुन से हो गए, कैफियत अजीब सी हो गई। दिल में वहम और खदशात सर उठाने लगे। दिल चाहा अभी इसी वक्त वहाँ से बाहर निकल जाऊं, मगर अमजद ने कॉल मिला दी थी। मगर ये क्या, कमरे में ही किसी दूसरे फोन पर कॉल आने लगी। रिंगटोन बज उठने पर मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया, जैसे उम्र कैसे रहाई मिली हो। वो यकीनन अमजद का ही दूसरा नंबर था, मगर अमजद ने साइड टेबल की दराज में से इत्मीनान से फोन निकाला। मैं फोन देखकर उछल पड़ा। ये तो हैरानी के मारे मुझसे बात मुकम्मल नहीं की गई। हाँ, ये वही फोन है जो वो इस्तेमाल करती थी, पर जानता है ये यहाँ क्यों है? क्योंकि वो खुद छोड़कर गई है। इससे बहुत अच्छा और महंगा सेट मिल गया है। मालूम है किसने दिया? उसके शोहर ने, जिससे वो कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। अमजद के मुंह से होने वाले पै दर पे इंकशाफात ने मुझसे हैरान होने की सलाहियत छीन ली थी।
और मेरी इज्जत के नफ्स के परखचे उड़ा दिए। आजकल मुल्क छोड़कर भागने के चक्कर में है। तुझसे रकम भी इसीलिए मांग रही थी क्योंकि पैसे कम पड़ रहे हैं। और मैं वो तंजिया अंदाज में धीरे से हंसा। मुझ पर तो उसकी खासी नजरे करम थी। मेरा ख्याल है तुझे ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं। वो दिन याद है जब उसने अब्बा का बहाना किया था और घर जाने के लिए जल्दी से नीचे आ गई थी। वो उस दिन अपने घर नहीं गई थी, यहाँ आई थी। उसने हाथ फैलाकर अपने बेडरूम की तरफ इशारा किया। शायद वो खुद भी जानता था कि उसने किस तरह धीरे धीरे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींची थी। मुझसे खड़ा रहना दुश्वार हो गया। सब उसके घड़े हुए बहाने और कहानियां थी। आखिर उसके लिए पासपोर्ट और वीजा तो मुझे ही बनाना था ना। जितनी कीमत वो नोटों से चुका पाई उसने दी और बाकी उसने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा ही किया। मैं मानता हूँ मैं भी तेरा कसूरवार हूँ। उसकी आड़ में तेरी जेबें खाली करवाता रहा। पर यार अब जो तू करने जा रहा है ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादती और नाइंसाफी है तेरी माँ और बहन के साथ। वो बेचारियां क्यों पीसे इस मामले में जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए मैंने तुझे ये सब बता दिया, वरना खेल तो वो वैसे भी खत्म कर चुकी है। मुझे, तुझे और हम जैसे कितनों को अपनी उंगलियों पर नचाने के बाद। वो नफरत से जमीन को देख रहा था और मैं साकत आंखें फाड़े उसको। वापिस पलट जा और ये पैसे जाकर उनके हकदारों को दे। अमजद ने मेरा कंधा छूकर मुझे किसी ख्वाब से जगा दिया। मैंने पलकें झपकाई तो एहसास हुआ कि मेरी आंखें नम थी। लड़खड़ाते कदमों और धड़धड़ाते दिल के साथ मैं वहाँ से उठ आया और कितनी देर बेयकीनी के आलम में अपने कमरे में पड़ा रहा। यहाँ तक कि सोबिया आ गई और मुझे एक नई राह, एक नया निशान मंजिल थमा गई। वो अजनबियों से बात नहीं करती। मैंने करवट बदली और दुखे हुए दिल से सरगोशी निकली। अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। मेरी आंखें शिकस्त, निदामत और जिल्लत के एहसास से सुर्ख हो रही थी क्योंकि मैं बेवकूफ तो बन ही चुका था मगर बच्चों की तरह रोना नहीं चाहता था। मेरे कानों में अमजद की आवाज गूंज रही थी। तन की आंखें सिर्फ सजा तन, संवरा तन ही देख सकती हैं। शहजादे अपने मन की आंखें खोल, अपने मन को उजाल, क्योंकि एक उजले मन की आंख ही किसी और के मन का उजलापन देख सकती है।